विल डिस्कस अबाउट एसे नंबर 505 जो बात कर रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। एसे 505 क्या डील करता है? ये डील करता है विद द ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। इट स्टेट्स एसे 500 इन एडिशन क्या बोलता है कि जो रिलायबिलिटी है ऑडिट एविडेंस का वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द सोर्स बाय नेचर एंड इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन। तो रिलायबल ऑडिट एविडेंस रिलायबल है कि नहीं है वो इन्फ्लुएंस है बाय द सोर्स एंड बाय इट्स नेचर एंड इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। तो कुछ चीज़ें बताए गए हैं जहाँ के कौन से केसेस में ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होगा। तो ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इनएडिक्वेट इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी। तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है व्हेन इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी। इफ द ऑडिट एविडेंस इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by influence. Audit evidence is more reliable when it exists in the documentary form, whether paper, electronic or other medium. Accordingly, depending on the circumstances of the audit evidence in the form of external confirmation received directly by the auditor from the confirming parties may be more reliable than evidence generated internally by the entity, right? What are the objectives of the auditor when using external confirmation procedure is to design and perform such procedures to obtain relevant and reliable audit evidence. डेफिनेशन क्या होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का? ऑडिट एविडेंस दैट इज obtained as a direct return response to the auditor. क्या? ऑडिट एविडेंस obtained as a direct return response to the auditor from the third party in paper form, by electronic or by other medium. पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है? वो रिक्वेस्ट जो दैट द कंफर्मिंग पार्टी responds directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information. So what is positive confirmation request? A request that the confirming party responds directly to the auditor indicating whether confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information. What is negative confirmation request? A request that the confirming party responds to the auditor only if the confirming party disagrees with the information provided in the request. Non-response is a failure of confirming party to respond to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered, right? So failure of a confirming party to respond to a positive confirmation request और अ confirmation request return undelivered. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा रिस्पॉन्स जो इंडिकेट करता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? और रिस्पॉन्स तो आया है बट वो रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कन्फर्म्ड और कंटेन्ड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कन्फर्मिंग पार्टी। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कन्फर्म्ड और कंटेन्ड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कन्फर्मिंग पार्टी. द एक्सेप्शन नीड्स टू बी असेस्ड to the entire population after analyzing the reason for difference, right? Next, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन करना है तो उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे? व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स द ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट. ऑडिटर को मेंटेन करना पड़ेगा कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जैसे कि इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड और रिक्वेस्टेड, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी, designing the confirmation request including determining that the requests are properly addressed and contain return information responses to be sent directly to the auditor, or sending the request including follow-up request when applicable to the confirming parties. तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स क्या होंगे? पहला तो ऑडिटर को मेंटेन करना चाहिए कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, साथ ही साथ डिटरमाइन करना चाहिए द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, सेलेक्ट करना चाहिए द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, डिज़ाइन करना चाहिए द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट including determining that requests are properly addressed and
contain return information for responses to be sent directly to the auditor. और साथ ही साथ send करना चाहिए the request including follow up request when applicable to the confirming party. तो एक एक चीज़ हम देखते हैं. In determining the information to be confirmed or requested, यहाँ पे जो external confirmation procedures है वो frequently perform होते हैं to confirm or request information regarding two things, regarding account balances and their elements. They may also be used to confine the terms of external confirmation को use भी कर सकते हैं to confine the terms of agreements, contracts, transactions between an entity and the other parties, या फिर to confirm the absence of certain conditions such as साइड अग्रीमेंट. राइट, सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट पार्टी. तो रिस्पॉन्सेज टू कन्फर्मेशन, अगर रिस्पॉन्स मिलते हैं कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट तो वो ज़्यादा रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस देता है. व्हेन कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आर सेंट टू अ कन्फर्मिंग पार्टी, द ऑडिटर बिलीव्स इज नॉलेजेबल अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कन्फर्म. तो उस कन्फर्मिंग पार्टी से अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो वो रिलायबल और रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस होता है. लेकिन वो कन्फर्मिंग पार्टी ऑडिटर बिलीव करता है कि वो एक नॉलेजेबल है अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कन्फर्म. फॉर एग्जाम्पल, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल हु इज़ नॉलेजेबल अबाउट द ट्रांजैक्शंस और अरेंजमेंट्स फॉर विच द कन्फर्मेशन इज रिक्वेस्टेड मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन एट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम होम टू रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन. अभी जब आप डिज़ाइन करते हो, हमने देखा कि आपको डिज़ाइन करना पड़ता है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को और डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या रिक्वेस्ट प्रॉपरली एड्रेस हुए हैं कि भी नहीं. तो उसके लिए आप डिज़ाइन कैसे करोगे? द डिज़ाइन ऑफ अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में डायरेक्टली अफेक्ट द कन्फर्मेशन response rate and the reliability and the nature of the audit evidence obtained from the responses. So what are the factors to consider when designing the confirmation request? ये कुछ factors आप याद रखोगे अगर आपको डिज़ाइन करने हैं confirmation request को. ठीक है, पहले तो क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया है क्या, तो वो कंफर्म करने के लिए आप ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो. तो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड है क्या? आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क. फिर द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कैसे होना चाहिए? प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट, प्रायर एक्सपीरियंस है क्या आपको ऑन द ऑडिट ऑफ और सिमिलर एंगेजमेंट्स. द असर्शंस, कौन से असर्शंस आप एड्रेस कर रहे हो? मेथड ऑफ कम्युनिकेशन किया है, पेपर फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक है, अदर मीडियम है, क्या मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन ली है क्या, और एनकरेजमेंट टू द कन्फर्मिंग पार्टीज टू रेस्पॉन्ड टू द, क्या कन्फर्मिंग पार्टीज में ओनली बी विलिंग टू रेस्पॉन्ड टू द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कंटेनिंग, क्या कन्फर्मेशन पार्टीज तभी रेस्पॉन्ड करेंगे तब जो मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन मिला है क्या, क्या एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी टू कन्फर्मिंग पार्टी जिससे आप कन्फर्मेशन ले रहे हो, क्या वो उसके काबिलियत या वो है भी क्या कि वो कन्फर्म कर सके या प्रोवाइड कर सके द requested information. So these are the factors that has to be considered when designing the confirmation request. Again, specific identified risk of material misstatement including fraud risk, the layout and presentation of confirmation request, prior experience on the audit or similar engagements, the assertions being addressed, the method of communication, management's authorization or encouragement to confirming parties to respond to auditor. Confirming parties may only be willing to respond to a confirmation request containing management's authorization. The ability of the intended confirming party to confirm or provide the requested information. Right? Then follow up के लिए क्या लिखोगे? The auditor may send an additional confirmation request when a reply to a previous request has not been received within a reasonable time. For example, the auditor may, having re-verified the accuracy of the original address, send an additional or follow up request. अगर मैनेजमेंट रेफ्यूजल करता है ऑडिटर को कि तू मत भेज कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो क्या करेगा ऑडिटर? इफ मैनेजमेंट रेफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, देन द ऑडिटर शैल इंक्वायर करेगा कि मैनेजमेंट की भैया क्यों रेफ्यूज़ कर रहे हो मेरे को, तो रिक्वायर अस टू मैनेजमेंट रीजंस फॉर द रेफ्यूजल एंड सीक ऑडिट एविडेंस अस टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस. फिर अब रेफ्यूज़ कर दिया तो इम्प्लीकेशन क्या होंगे? तो इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैनेजमेंट रेफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स
assessment of relevant risk of material misstatement including risk of fraud and the nature, timing, extent of other audit procedures. फिर रेफ्यूज कर दिया, अब मैं क्या करूँ? परफॉर्म करो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. तो परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस. राइट, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट का रेफ्यूजल जो है टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अनरीजनेबल है, या ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा TCW को. ऑडिटर साथ ही साथ डिटरमाइन करेगा द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स ओपिनियन इन द अकॉर्डेंस विद SE 705. सो आई होप इट इज़ क्लियर. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल करता है तो क्या क्या होगा? पहले इंक्वायर करेगा टू मैनेजमेंट रीजंस फॉर रेफ्यूजल एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, इवैल्यूएट द implications of management refusal on auditors assessment of relevant risk of material misstatement including risk of fraud and on nature, timing, extent of other audit procedures, perform alternative audit procedures designed to obtain relevant and reliable audit evidence. और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट का रेफ्यूजल अनरीजनेबल है तो वो कम्युनिकेट करेगा TCWG को, और साथ ही साथ डिटरमाइन करेगा द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट एंड ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन. राइट, नेक्स्ट जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड आते हैं तो बाद में क्या करेगा? तो क्या वो रिस्पॉन्सेस रिलायबल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करोगे? रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है फैक्टर्स दैट गिव राइज टू द डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऑडिटर क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा फर्दर ऑडिट एविडेंस टू रिजॉल्व दोज डाउट्स. फिर भी अगर ऑडिटर डिटरमाइंस की रिस्पॉन्स टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिलायबल नहीं है तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा द इम्प्लीकेशंस ऑन द असेसमेंट ऑफ द रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑन द रिलेटेड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. तो रिजल्ट आया रिलायबल नहीं है, डाउट है, तो आप फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे. इफ़ द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द रिस्पॉन्स टू अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिलायबल नहीं है तो वो इम्प्लीकेशंस देखेगा. राइट, नेक्स्ट नेगेटिव कन्फर्मेशंस होते क्या है? नेगेटिव कन्फर्मेशंस, अगर हमको नेगेटिव कन्फर्मेशंस मिलते हैं, जो ये प्रोसीजर है provides less audit evidence than positive confirmation. So what is the first point? Negative confirmations provides less audit evidence than the positive confirmations. Accordingly, the auditor shall not use negative confirmation request as a sole substantive audit procedure to address and assess risk of material misstatement at assertion level unless of the following are present. तो सिर्फ इन चार केसेस में आप एक नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जैसे कि ऑडिटर ने एसेस किया है कि द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है एंड ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन किया है रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू द असर्शन. सो द ऑडिटर हैज एसेस्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज लो एंड हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू द असर्शंस. जो पॉपुलेशन है ऑफ आइटम्स सब्जेक्ट टू द नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, उसमें कंप्राइसेस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस और कंडीशंस, और साथ ही साथ अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सेप्टेड. एक्सेप्शन रेट भी लो है, ठीक है. फिर द ऑडिटर इज नॉट अवेयर, ऑडिटर को अवेयर ही नहीं है ऑफ सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस दैट वुड cause recipients of negative confirmation request to disregard such request. Right, तो कब कब नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आप दे सकते हो? नॉर्मल रूल क्या है? द ऑडिटर शैल नॉट यूज नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एज अ सोल सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल अनलेस ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट. द ऑडिटर हैज असेस्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज लो एंड हैज obtained sufficient and appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of controls relevant to the assertion. The population of items subject to negative confirmation procedures comprises a large number of small homogeneous account balances, transactions or conditions. A very low exception rate is expected and the auditor is not aware of circumstances or conditions that would cause the recipients of the negative confirmation request to disregard such request. So this is all about essay number 505. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? आई थिंक इट इज़ ये नेगेटिव कन्फर्मेशन का आ सकता है कि 4 केसेस में आप नेगेटिव कन्फर्मेशन दोगे. अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया तो ऑडिटर क्या करेगा इज़ इम्पॉर्टेंट.
उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे एंड सम ऑफ द डेफिनेशंस एज वेल. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट essay number 501 जो टॉक करता है अबाउट ऑडिट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस. तो ये essay 510 डील करता है विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. इन एडिशन टू तो ये जो essay 510 है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट के साथ साथ दैट इज द ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ इंक्लूड करता है मैटर्स रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर्स दैट एग्जिस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड सच एज contingencies and commitments. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? एन एंगेजमेंट इन विच ईदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वेर नॉट ऑडिटेड और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वेर ऑडिटेड बाय अ प्रीडेसेसर ऑडिटर. ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इस ऐसे के? इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस इज टू ऑब्टेन, ऑफ कोर्स दे वांट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट कि वेदर कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट्स that materially affect the current period financial statement and appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period's financial statements or changes thereto are appropriately accounted for and adequately presented and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework. अभी opening balances से related audit procedures क्या होगी? The auditor पहले क्या करेगा? Auditor read करेगा the most recent financial statements if any and predecessor ऑडिट रिपोर्ट को भी इफ एनी फॉर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स. तो पहला स्टेप ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर रीड करेगा द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी एंड द प्रीडेसेसर ऑडिट रिपोर्ट देयरऑन इफ एनी फॉर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स. साथ ही साथ ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिस स्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ये मटेरियली अफेक्ट करते हैं कि नहीं, ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, वो कैसे देखोगे? डिटरमाइन करोगे कि वेदर प्रायर पीरियड के जो क्लोजिंग बैलेंस है, डिटरमाइन करो कि प्रायर पीरियड के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है टू द करंट पीरियड और व्हेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट अगर डिस्क्लोज किए गए हैं एज अ prior period item in current year statement of PN and when appropriate any adjustments have been disclosed as prior period item in current year statement of PNL. तो ये आप डिटरमाइन करोगे. फिर डिटरमाइन करोगे कि वेदर द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंसेस में अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज ही रिफ्लेक्ट होते हैं कि नहीं, वो डिटरमाइन करोगे. फिर ये 3 चीज़ों में से कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि वेयर द प्रायर पीरियड, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है, pursuing the copies of the audited financial statements including the other relevant documents related to the prior period financial statements. Evaluate करोगे कि whether audit procedures performed in the current period provide evidence relevant to the opening balances, या perform करोगे specific audit procedures to obtain evidence regarding the opening balances, right? तो ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, आप ये 3 चीज़ करोगे. डिटरमाइन करोगे कि क्या वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है, अगर कुछ एडजस्टमेंट को डिस्क्लोज किया गया है एज अ प्रायर पीरियड आइटम इन द करंट ईयर PNL का स्टेटमेंट. फिर डिटरमाइन करोगे ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं. और फिर अगर पिछले साल के ऑडिटेड है तो उसके कॉपीज़ पेरुसल करोगे, डॉक्यूमेंट्स देखोगे, या एंड अगर इवेल्युएट करोगे कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं इन द करंट पीरियड वो प्रोवाइड करता है रेलेवेंट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस. इफ द ऑडिटर ऑब्टेन्स की ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन करता है स्टेटमेंट दैट कुड मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर परफॉर्म करेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि हाँ मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो कम्युनिकेट करेंगे वो मिस स्टेटमेंट टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG.
कंसिस्टेंसी की बात करूँगा तो ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा, एविडेंस की क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो ओपनिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट हुए हैं वो कंसिस्टेंसी अप्लाई करते हैं इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेदर चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीडिसेसर ऑडिटर से ऑडिट किए गए हैं और मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन है तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा द इफेक्ट ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 500 कि कौन सा मैटर गिव राइज टू द मॉडिफिकेशन है वो चीज़ वो इवैल्यूएट करेगा। नेक्स्ट, अगर ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग, अगर वो एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहा है रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस, ऑडिटर एक क्वालिफाइड ओपिनियन या एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट दे देगा। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट अफेक्ट द मिसस्टेटमेंट इज नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर और नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज, तो ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा एक क्वालिफाइड या एक एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि करंट पीरियड के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं है इन रिलेशन टू द ओपनिंग बैलेंसेज अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और a change in accounting policies is not properly accounted for and not for adequately presented or disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा एक क्वालिफाइड और एन एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर का ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करता है एक मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड दैट रिमेन्स रेलिवेंट एंड मटेरियल, अगर वो रिमेन भी करता है वो मॉडिफिकेशन रिमेन भी करता है और रेलिवेंट है एंड मटेरियल है टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर शेल मॉडिफाई द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल। ठीक है, इफ द प्रेडेसेसर ऑडिटर्स ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड अ मॉडिफिकेशन to the auditor's opinion that remains relevant and material to the current period financial statements, the auditor shall modify the auditor's opinion on the current period financial statements in accordance with SA 705. So this is all about initial audit engagement के audit procedures. I hope this is important and all of these things were correct, incorrect. It is important, right? We'll discuss about SA 550. SA 550 क्या डील करता है? डील करता है with auditors responsibilities regarding related party relationships and transactions. दो चीज़, related party relationships and transactions when performing an audit of financial statements. Related party क्या होता है? A related party is either a related party as defined in the applicable financial reporting framework. अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, तो ये 3 पॉइंट्स में जो दिया है वो रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी, जैसे कि अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज़ अ कंट्रोल और अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, अनदर एंटिटी ओवर विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ अ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज, or another entity that is under a common control, other entities that is under common control with the reporting entity through having common controlling ownership, owners who are close family members or common key management. क्या क्या? common controlling ownership, owners who are close family members or common key management. However, entities that are under common control by a state, जैसे कि नेशनल, रीजनल या लोकल गवर्नमेंट अगर होते हैं तो उनको रिलेटेड पार्टी कंसिडर नहीं किया जाता, आर नॉट कंसिडर्ड रिलेटेड अनलेस दे एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और शेयर रिसोर्सेज टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. अगर if they don't, unless they engage in significant transactions or share resources to a significant extent with one another, right? So however, entities that are under a common control by a state are not considered related unless they engage in significant transactions or share resources to a significant extent with one another. अभी nature of related party relationships and transactions, बहुत सारे related party transactions are in the normal course of business. In such cases, they do not carry higher risk of material misstatement of financial statements than similar transactions with unrelated parties.
However, nature of related party relations and transactions may in some circumstances give rise कर सकता है to a higher risk of material misstatement of the financial statements than the transactions with the unrelated parties. उसके कुछ examples बताओ जहाँ पे related party transactions देता है higher risk of material misstatement. Example, related parties जो है operate करते हैं through an extensive or a complex range of relationships or structures with a corresponding increase in the complexity of the related party transactions. वो information systems जो may ineffective हो सकते हैं at identifying and summarizing transactions and outstanding balances between an entity and its related parties, or related party transactions may not be conducted under the normal market terms and conditions. For example, some related party transactions may be conducted with no exchange of considerations. तो यहाँ इन केसेस में हमारा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो हायर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टी. सो अगेन रिवाइजिंग, व्हाट आर द एग्जांपल्स? रिलेटेड parties may operate through an extensive and complex range of relationships and structures with a corresponding increase in the complexity of the related party transactions. Information systems may be ineffective at identifying and summarizing transactions and account balances between an entity and its related parties. Related party transactions may not be conducted under the normal market terms and conditions. For example, some related party transactions may be conducted with no exchange of considerations. यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस टू एनेबल द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड their nature and effect on the financial statements. The auditor has a responsibility to perform audit procedures to identify, assess and respond to risk of material misstatement arising from the entity's failure to appropriately account for related party relationship, transactions or balances. Auditor needs to obtain an understanding of the entity's related party relationships and transactions sufficient to be able to conclude whether financial statements in so far are affected by those relationships and transactions. तो उनको क्या लेना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा एक ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन और आर नॉट मिसलीडिंग. इन एडिशन एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस इज रेलेवेंट टू द ऑडिटर्स evaluation whether fraud risk factors are present or not. This is because fraud may be more easily committed through related parties. क्योंकि fraud easily commit किया जाता है through related parties. अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन जब ऑडिटर इवैल्यूएट करता है वेदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट और नॉट. लेकिन but at the very same time, owing to the inherent limitations of audit, वहाँ पे एक unavoidable risk है that some of the material misstatement of the financial statements may not be detected even though the audit is properly planned and performed in accordance with the SA. तो context of related parties के केस में भी the potential effect of inherent limitation on the auditor's ability to detect a material misstatement greater है क्योंकि management may be unaware of the existence of all related parties या related party transactions may present a greater opportunity for collusion, concealment और manipulation by management. तो इन कारणों की वजह से जो पोटेंशियल इफेक्ट है ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन वो ग्रेटर है, जैसे कि मैनेजमेंट में बी अनअवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में प्रेजेंट अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कल्यूजन, कंसीलमेंट और मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट. प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज important in this context given the potential for undisclosed related party relationships and transactions. The requirement in this essay are designed to assist the auditor in identifying and assess the risk of material misstatement associated with the related party relationships and transactions and in designing audit procedures to respond to those assessed risks. Next, identity of the entities related parties क्या होंगे? आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज, जहाँ पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है कि रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी इज लाइकली टू बी रेडीली अवेलेबल टू द मैनेजमेंट.
क्यों? क्योंकि एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम विल नीड टू रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड समराइज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस to enable the entity to meet the accounting and disclosure requirements of the framework. अगर management is therefore likely to have a comprehensive list of related parties and changes for the prior period for recurring engagements, making the inquiries provides a basis. अगर इंक्वायरी करोगे तो provides a basis for comparing the information supplied by the management with the auditor's record of related parties noted in previous audits. However, अगर फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश नहीं करता है रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, द एंटिटी मे नॉट हैव सच इंफॉर्मेशन सिस्टम इन प्लेस. अंडर सच सर्कमस्टांसेस इट इज पॉसिबल कि मैनेजमेंट मे नॉट बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टीज. नेवरदलेस द रिक्वायरमेंट टू मेक इंक्वायरीज अबाउट the specified above still applies because management may be aware of the parties that meet the related party definitions. In such a case, auditors' inquiries regarding the identity of the entity's related parties are likely to form part of the auditor's risk assessment procedures and related activities performed in accordance with SA 315 to obtain information. इन सारी चीज़ों का information obtain करना and ये सारी चीज़ों का information obtain करना will be form a part of the auditor's risk assessment procedures, जैसे कि entity's ownership and governance structure, the type of investment that the entity is making and plans to make, the way the entity is structured and how it is financed. तो ऐसे आप देख के आप कंसिडर कर आइडेंटिफाई कर सकते हो द एंटिटी इज रिलेटेड पार्टीज. इन पर्टिकुलर केस ऑफ अगर कॉमन कंट्रोल रिलेशनशिप्स है, एज मैनेजमेंट इज मोर लाइकली टू बी अवेयर ऑफ सच रिलेशनशिप्स. If they have अगर उनका economic significance है to the entity, the auditor's inquiries are likely to be more effective if they are focused on whether parties with which the entity engages in significant transactions or share resources to a significant degree are related party. Of course, common control relationship में अगर वो significant transactions करते हैं, resources shares करते हैं to a significant degree, तो वो related parties माने जाएंगी. How can an auditor verify the existence of related party relations? During audit, the auditor should maintain alertness for the related party information by reviewing records and documents. He may inspect the following records or documents that may provide information about related party relationships and transactions. कौन से documents आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एंटिटी के इनकम टैक्स के रिटर्न आप इंस्पेक्ट करो, इंफॉर्मेशन सप्लाइड जो इंफॉर्मेशन एंटिटी सप्लाई करता है टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वो आप देखो, शेयर होल्डर के रजिस्टर को देखो और आइडेंटिफाई करो कि एंटिटी के प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स कौन है. फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को देखो ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG. एंटिटी के इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड्स को देखो और पेंशन प्लान्स को देखो. कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट्स विद की मैनेजमेंट और TCWG को देखो. सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट जो एंटिटी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है वो देखो. स्पेसिफिक इनवॉइसेस एंड करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द एंटिटीज प्रोफेशनल एडवाइजर्स. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो एंटिटी ने लिए हैं वो देखो. सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड देखो. इंटरनल ऑडिटर्स के रिपोर्ट को देखो. डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द एंटिटीज फाइलिंग्स विद अ सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर को देखो, जैसे कि प्रोस्पेक्टस, राइट. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप इंस्पेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दी related party information. Again, in entities income tax return, information supplied by the entity to regulatory authorities, shareholders registers to identify an entity's principal shareholders, statement of conflict of interest from management and TCWG, record of entities investments and those of its pension plans, contracts and agreements with key management or TCWG, significant contracts and agreements not in the entity's ordinary course of business, specific invoices and correspondence for the entity's professional advisors, life insurance policies acquired by the entity, significant contracts renegotiated by the entity, internal auditors report and documents associated with the entity's filings with the securities regulator. अभी एक कुछ कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ट्रू एंड फेयर. ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग. द फ्रेज ट्रू एंड फेयर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट signifies that the auditor is required to express his opinion as to whether the state of affairs and the results of the entity as ascertained by him in the ordinary course of his audit are truly and fairly represented in the account under audit. This requires that auditors should examine the accounts with a view to verify that all the assets, liabilities, incomes and expenditures are stated as amounts which are in accordance with the
accounting principles and policies which are relevant, and no material amount, item or transaction has been omitted. What constitutes a true and fair view is a matter of professional auditor's judgment in the particular circumstances of case. To ensure true and fair view, auditor को ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि जो assets है are neither undervalued or overvalued according to the applicable accounting principles. No material asset is omitted. The charge, if any, on assets are disclosed. Material liability should not be omitted. The profit and loss account and balance sheet disclose all matters required to be disclosed. Accounting policies have been followed consistently, and all unusual, exceptional, or non-recurring items have been disclosed separately. तो ट्रू एंड फेयर इंश्योर करना है कि हाँ मेरे जो ऑडिट किया है और सब बनाया है वो ट्रू एंड फेयर है. कैसे देखोगे ट्रू एंड फेयर है? ये चेक करोगे कि एक तो मटेरियल एसेट ओमिट नहीं होना चाहिए, मटेरियल लायबिलिटी ओमिट नहीं होना चाहिए, एसेट्स को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू नहीं होना चाहिए, अगर एसेट्स के ऊपर चार्ज है तो डिस्क्लोज होना चाहिए, पीएनएल और बैलेंस शीट सारे मैटर्स डिस्क्लोज करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलोड है, और जो अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स हैं दे हैव बीन डिस्क्लोज्ड separately as well, right? So this is all about the concept of true and fair view.